So hello one and all present here. Today I, Isha, along with Aryan, going to host this event, the corporate session. And the topic for today is the art of captivating audience. And for this, we have Mr. Prabhat Podar as our industrial expert and Dr. Daneshwar sir as our faculty member. Mr. Prabhat Podar is an ex-banker. He was the deputy manager at State Bank of India in Gujarat for 7 years. He was also a faculty at Mahindra Education Private Limited for 4 years. There he served as a lecture-based faculty for general awareness and economy. Presently, he is a short filmmaker at The Ironical, a YouTube channel which is dedicated to short movies. He has served as a writer, producer, and actor in more than 30 short films. He has won 5 awards and several recognitions from different film festivals. He has completed his MBA from Institute of Management Studies, DAVV Indore. He has also written a book named as Not a Long Story. He has also a YouTube channel named as Not a Long Story. Again, he is a constant learner with flexibility to adapt to new situations and challenges, having experience in diverse fields. We welcome you, sir. Thank you. Thanks a lot. Daneshwar Sharma is the Dean of Student Affairs and Professor of Business Communication at Jaipuria Institute of Management, Jaipur. His research interests are human communication, leadership, language training, literature in life, scared text, and gender studies. He is an associate editor of the Journal of Business and Professional Communication quarterly, and he is on the editorial board of the Journal of Poetry Therapy. He has written several research papers and books. He discusses various aspects of business, i.e., sales, personal management, motivation, and business leadership through his YouTube channel, Jaipuria Talks. He has conducted more than 50 training sessions for all over of employee ranging from vice president to senior managers for various organizations like BPCL, Power Grid, AU Bank, Canara Bank, IOCL, Royal Government of Bhutan, Niti Aayog on topics like team building, leadership, conflict management, mindful communication, negotiation skill, time serving, and customer relationship building. So let's get started with the event. So I would like to ask Prabhat sir to introduce yourself and your creative journey and tell us about how do you came in your respective fields and how did you evolve in them. Okay. Hello all. और देखिए मतलब एक्चुअली इतने डाइवर्स काम किए हैं तो विल कंसंट्रेट ऑन द क्रिएटिव साइड ओनली. तो आई वाज वर्किंग विद स्टेट बैंक. आई वाज अ क्रेडिट मैनेजर देयर. प्रेशर बहुत था. तो प्रेशर इतना था कि 10-10 मिनट बीच में निकाल के कहानियां लिखने लगा था, क्योंकि जब स्टोरीज लिखता था तो थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता था. somehow when you write you feel relieved और बहुत हल्का महसूस होता था. और रीडिंग की आदत बचपन से थी और बचपन में कॉमिक्स बहुत पढ़ी, फिर अगाथा क्रिस्टी को बहुत पढ़ा और उसके बाद जो अच्छा राइटर देखा उसको पढ़ते गए. तो समवेयर और द अदर इट वाज लाइक कि लिखना है. और बैंक में इट स्टार्टेड ड्यू टू प्रेशर ऑनेस्टली. और उसके बाद ये हुआ कि जब बैंक 2014 आई लेफ्ट, है ना, तो उसके बाद आई स्टार्टेड शेयर ट्रेडिंग फुल टाइम. शेयर ट्रेडिंग हुआ, उसमें पूरा लॉस हो गया, पूरा जितना पैसा था. तो तो ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड ऑल फिनिश्ड. उसके बाद ये रहा कि फिर पढ़ाना चालू किया. तो बहुत फुलफिलिंग काम था. और क्योंकि वहां पे एक चीज बोली गई मुझे कि टेल स्टोरीज. स्टूडेंट लाइक स्टोरीज, मतलब उनको कोई भी चीज थ्रू स्टोरीज आप बताएंगे तो शायद उनको ज्यादा अच्छा लगेगा. और मुझे भी बहुत मजा आने लगा समवेयर और द अदर. 2019 में किताब छाप दी. तो सेल्फ पब्लिशिंग था, क्योंकि इतने बड़े राइटर नहीं है कि कोई आपके बड़े पब्लिशर्स आपको लेंगे. फिर आ गया कोरोना. तो कोरोना में कई लोगों ने जैसे अपने यूट्यूब चैनल चालू किया था, तो आई ऑल्सो स्टार्टेड यूट्यूब चैनल एंड उसमें फिर डाइवर्स कंटेंट डालता था. फिर एक दिन सोचा कि क्यों ना अपनी कहानियां पढ़ने लगूं, क्योंकि कई लोगों का ये कहना था, बुक तो उनको पसंद आई थी, शॉर्ट स्टोरीज थी, बट उनका ये कहना था कि उसमें हिंदी में नहीं है वो, मतलब बेसिकली बुक वाज इन इंग्लिश. उन्होंने कहा हिंदी में इसको कब
ट्रांसलेट करेंगे, तो मैंने उस स्टोरीज को हिंदी में नरेट करना चालू किया। और एक व्यक्ति थे, उनको वो एक कहानी बहुत पसंद आ गई, तो उन्होंने अप्रोच करके मुझसे कहा क्यों ना हम शॉर्ट फिल्म्स बनाए साथ में। तो मैं उनसे मिला, 1-1.5 साल उनके साथ रहा, बट बहुत मजा नहीं आया उनके साथ, क्योंकि बहुत ही वॉज वेरी स्लो। एंड देन अनदर गाय जॉइंड अस, और मैंने और उस नए लड़के ने मिलके देन वी स्टार्टेड मेकिंग मूवीज। सो वी हैव मेड अराउंड 30 मूवीज। जयपुर का ही एक स्टार्टअप है iWorks, उसके लिए हमने फिर कंटेंट राइटिंग करी, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट्स बनाए, और बस वही था। और उसके बाद मजा आने लगा, और समवेयर और द अदर हमको एक चीज समझ में आई कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है उसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई बड़े कैमराज नहीं है सर, जैसे जो एक रेड होता है, ब्लैक होता है, या एरीज होता है, बहुत बड़े बड़े कैमराज होते हैं, 10-10 लाख 50-50 लाख के कैमराज होते हैं। हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो सिंपल कैमरा है, लेकिन हम सिंपल कैमरा में बना देते हैं, सिंपल लाइट्स में बना देते हैं। तो एक चीज समझ में है कि जो डिजिटल आज का दौर है, तो यू कैन मेक दिस थिंग। तो दिस वाज मोर और लेस जो हम लोगों ने काम चालू किया। देन वी स्टार्टेड एंजॉइंग, कुछ अवार्ड्स मिल गए फिल्म फेस्टिवल्स में, तो थोड़ा सा उससे एक क्या कहें, प्रोत्साहन मिल गया, तो अब वो काम चालू है। प्लीज, हाँ, अगला आप यू कैन आस्क। वो तो Yes, बहुत sir. बोरिंग जर्नी है, बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें मजा नहीं आएगा आपको ज्यादा। Yes, sir. Like हाँ, by hearing you, we can tell that storytelling is at heart of your work. So, what do you believe makes a compelling story, regardless of any medium that you're working in? ऑलराइट। तो हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी एक कहानी होती है, उसमें देयर शुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अगर हम बात करें, एक देखिए अलग अलग जॉनर्स हैं। जैसे अगर हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे तो हम अलग प्रकार का कंटेंट डालते हैं, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर स्टोरी की बात करें, एक कहानी की बात करें, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो वो कहानी निबंध है। क्योंकि आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, कोई भी अच्छी फिल्म देख लीजिए, देयर हैज टू बी समथिंग दैट द प्रोटैगनिस्ट वांट्स, एंड देयर इज सम प्रॉब्लम। मान लीजिए हीरो है, वो अपने घर से मार्केट जाना चाहता है, और वो आराम से पहुंच गया, तो वो कहानी नहीं हो सकती वो। लेकिन उसको बीच में कोई ना कोई ट्रबल आना चाहिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट अच्छा, और वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बहुत रूडिमेंटरी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इतने सालों से दुनिया में कहानियां बहुत लिखी गई हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई पहले सुनी हुई है, या मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ एक नॉवेल्टी होनी चाहिए, और एक जो हमें लगता है, जैसे खासतौर से अगर इंस्टाग्राम स्टोरी टेलिंग की बात करें, तो एक वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू इज द कोर। मैंने आपको टाइम दिया, आज की तारीख में कहा जाता है कि आपको यूट्यूब फ्री है या इंस्टाग्राम आपके लिए फ्री है, लेकिन वॉट यू आर गिविंग इज योर टाइम। मतलब आप अपना टाइम खर्च कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है जो रिपीटेटिव है। आप उसको देखेंगे और आप कहेंगे ठीक है, अच्छा था, आपने एंजॉय भी कर लिया शायद, लेकिन उसको देखने के बाद आप घर लेके क्या गए, वो एक जो वैल्यू है वो आपको देनी पड़ती है। अगर आप वो वैल्यू दे पाए, तो आदमी रुकता है। अदरवाइज वो एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, तीसरी बार कहेगा नहीं यार, इनका तो ऐसा कुछ नया नहीं है। हर बार ये, अब आप देखते हैं, जैसे मैं मोटिवेशनल वीडियोस बहुत बनाता हूँ, दानेश्वर सर ने वहीं पे शायद मुझे देखा था। तो मोटिवेशनल वीडियो तो सर बहुत लोग बना रहे हैं, तो फिर अच्छा, मैं तो एडिटिंग वगैरह में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। बहुत ही मेरे रफ वीडियोस रहते हैं, बैकग्राउंड में नॉइज बहुत आती रहती है, पीछे जो भी बैकग्राउंड्स रहते हैं। तो भाई फिर क्यों आदमी आपके पास आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि उसको कंटेंट चाहिए। यानी एट द एंड ऑफ द डे, कंटेंट किसी ना किसी को चाहिए है। हर व्यक्ति को फ्लैशी एडिट्स नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को फ्लैशी म्यूजिक नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो वो मेरे, हाउ शुड आई से, व्यूअर्स नहीं है। मतलब कई लोग मुझसे कहते हैं कि व्हाई डोंट यू इम्प्रूव ऑन थिंग्स। मैं कहता हूँ मैं कोशिश करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ, बट अगर एट द कोर ऑफ द इट कंटेंट की जगह एडिटिंग आ गई, तो आई एम नॉट दैट गाय, क्योंकि मैं दिन में 4-4 वीडियो बना देता हूँ, मेरी इच्छा होती है। तो अगर मैं एडिटिंग में लग गया, तो वो कंटेंट विल बी ऑन द बैक बर्नर, और विजुअलाइजेशन थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू शुड बी देयर इन एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, किताब में हो, फिल्म में हो। मैं एक फिल्म चल रही थी, हिम्मत वाला, जो रीमेक हुआ था अजय देवगन साहब का। तो मैं वाज जस्ट वाचिंग दैट फिल्म,
उन्होंने ओरिजिनल भी शायद मैंने नहीं देखी है, बट मैं देख रहा था कि कैसे उन्होंने पुरानी फिल्म को सेम टू सेम कॉपी कर दिया। और 2023 में या 2020 में शायद फिल्म आई थी, आपको 1980s की जो सोच थी उसमें वो फिल्म शायद रिलीवेंट थी, या जो स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग रिलीवेंट था, लेकिन अब वो नहीं है। यानी यू हैव टू अडेप्ट, थोड़ा सा आपको रिलीवेंट रहना पड़ेगा, तो शायद मतलब पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन योर कंटेंट, नहीं तो उनको लगेगा तो पुरानी ही बात कर रहे हैं। आपने वो फिल्म देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, आई थिंक सबने देखी होगी। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट गांधी जी। अब गांधी जी वाज इन 1947 ना सर, ही डाइड इन 1948। तो हाउ इज ही रिलेवेंट टुडे, दे टोल्ड। मतलब गांधी के आइडिया आज क्यों रिलेवेंट है, उस फिल्म की ब्यूटी वो है। अगर वो उसी जमाने के हिसाब से गांधी जी को पोर्ट्रे करते तो शायद लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आप किसी भी चीज पे चर्चा करें, यू हैव टू मेक श्योर जो आपका लिसनर है उसको उससे कुछ मिला। अगर उसको उससे कुछ मिल नहीं रहा है तो मतलब यू आर फेलिंग समवेयर। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। So one important lesson I think we can learn from this conversation so far is that you have to know your audience. So on Yes. Instagram, for example, there can be two kind of audience. One who is looking for flashy Yes. videos with good edits and good quality, and Yes. one is looking for pure, I can use the Hindi word gyan, right? Yes. Crystal clear, right? Bite-sized gyan, right? बिल्कुल। So for example, in one of your videos, so you can say that I am one of the stalkers, right? One person said कि sir आपके मोबाइल पे notification की sound आ रही है, उसको बंद कर लो, जी right? And जी even with that notification sound, your video had some 4,000 like or something like that. राइट। नहीं ये Right? तो होता है। Yes, yes, क्योंकि सर absolutely. आई एक्चुअली इंजॉय, मतलब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो आई ट्राई टू एंजॉय इट, और उस टाइम मैं ध्यान नहीं देता कि मेरा नोटिफिकेशन का साउंड बंद है कि नहीं, या मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा मैं जानबूझ के किसी को परेशान करने के लिए तो नहीं करता, बट अब आ गया बीच में साउंड, तो मैं उसको अच्छा चल रहा है मैं उसको बंद थोड़ी करूंगा, मैं तो मेरा पॉइंट कह दूंगा। Yes. मेरा फ्रेंड है सर, मैं काफी टाइम पहले गया था, मैं उसको बहुत पुश करता था। मैं कहता था कि भाई तुम इंग्लिश पढ़ाते हो अच्छा है, ही वाज आउट ऑफ जॉब एट दैट टाइम। मैंने कहा यूट्यूब पे व्हाई डोंट यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर इंग्लिश वीडियोस। तो अ फ्यू डेज आफ्टर वो उसने मेरे को कॉल किया, बोला प्रभा तुमको मालूम है कि यूट्यूब पे अच्छे से अच्छा कंटेंट है इंग्लिश का। मैंने कहा ठीक है। बोला बेकार से बेकार है। मैंने कहा ठीक है। बोले इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों चल रहे हैं, यानी जो अच्छा कंटेंट बना रहा है उसको भी व्यूअर मिल रहे हैं, जो चिल्ला चोट कर रहा है उसको भी व्यूअर मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि हर प्रकार का व्यूअर है। 140 करोड़ की आबादी है सर, आप जिस प्रकार का कंटेंट डालोगे आपका व्यक्ति आप तक पहुंच जाएगा। अब मुझे 140 करोड़ तक नहीं पहुंचना, मेरी ऐसी कोई एस्पिरेशन नहीं है। मैं चाह रहा हूं जो मेरे प्रकार का कंटेंट पसंद करते हैं वैसे 50 लाख लोग आ जाएं, और वो होंगे। तो इसलिए मैं कभी भी मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई सब लोग मुझे देखें। जिसको अच्छा लग रहा है ही इज मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। ये एक थोड़ा सा है। Absolutely. Yes, Aryan. सो सर जैसे कि हमें पता है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बुक्स और हर प्लेटफॉर्म पे आप स्टोरी टेलिंग करते हो, तो जी हर प्लेटफॉर्म के लिए आप स्विच कैसे करते हो स्टोरी टेलिंग की अप्रोच, और हर प्लेटफॉर्म पे क्या स्ट्रेंथ, क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेट्स मिलते हैं आपको उस चीज को आगे बढ़ाने में? देखिए, जब आप बुक लिखते हैं, जब आप स्टोरी लिखते हैं, तो आप सबसे फ्री हैं। कैसे फ्री हैं? अभी मैं लिख दूंगा कि मैंने एक कहानी लिखी, उसका कैरेक्टर है, उसका ईशा है उसकी मेन लीड, और उसने एक रॉकेट पकड़ा और उससे वो चांद पे पहुंच गई। आई कैन राइट इट इन अ बुक, कोई दिक्कत नहीं है, और शायद मजा भी आएगा किसी को। लेकिन इसी चीज को अगर मुझे फिल्म में बनाना है तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि इतना रिसोर्स सर मेरे पास नहीं है। क्योंकि ये फिल्म को शूट करने में जितना मुझे, अच्छा आपको लगता होगा कि भाई शूटिंग तो बड़ी आसान चीज है, बट मैंने एक्चुअली 1.5-2 साल से फिल्म मेकिंग चालू करी है एक्चुअली। तो मैं जब नया नया था तो बहुत एंथुजियास्ट था, मैंने कहा यहाँ शूट कर लेंगे, यहाँ शूट कर लेंगे यार। मेरा जो पार्टनर है वो मुझसे काफी इस मामले में 2016 से शूटिंग कर रहा था, तो कहता था ऐसा नहीं होता। मैं कहता था ये भीड़ में करते हैं ना अपन शूटिंग, बढ़िया आएगा। वो कहता था आपको पता भी नहीं क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। अब आप शूट कर रहे हो भीड़ में, जो नॉइज है, बैकग्राउंड नॉइज, अब जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे, तो बैकग्राउंड नॉइज चल जाएगी क्योंकि वो एक लाइव वीडियो है।
लेकिन अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, तो बहुत बैकग्राउंड नॉइस के साथ मैं नहीं बना सकता। तो अगर क्राउडेड प्लेस पे मैं कर रहा हूँ वो शूट, तो बैकग्राउंड नॉइस तो आएगी। मेरे पास इतने महंगे साउंड सिस्टम्स नहीं है कि वो बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल कर दें, तो मुझे डबिंग करनी पड़ेगी। अब मैं डबिंग करूंगा तो सर क्या होता है, जब हम डबिंग करते हैं तो जो अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यू कैन फील कि एक आदमी अपने एक फीलिंग के साथ बात कर रहा है, ये फील डबिंग में कभी नहीं आता। मतलब सिंक भले ही हो जाएगा कि यही चीज आप लिप सिंक में ले आएंगे। दूसरी चीज होती है कि पब्लिक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, कोई व्यक्ति वो शूटिंग देखते हुए निकल गया, तो ये कुछ आते हैं, खैर वो तो रिलेवेंट चीज है। एक जो बहुत बड़ा एक इशू आता है राइटिंग को फिल्म मेकिंग में कन्वर्ट करने का, लेट से आपने एक किताब जरूर सुनी होगी, गॉडफादर, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक्स। तो उसमें सीन मुझे बहुत पसंद है। उसमें क्या होता है, हीरो खड़ा हुआ है अस्पताल के बाहर अपने फादर को बचाने के लिए, पुलिस वाला आ रहा है, उससे उसका कन्फ्रंटेशन हो रहा है और पुलिस वाला उसको ऐसा मारता है, उसकी नाक टूट जाती है। नाउ व्हाट द राइटर हैज रिटन, मारियो पूजो, उन्होंने कहा है कि ही broke my nose. I was in excruciating pain. The blood was going over my lips and through my cheeks. I can feel the warmness of the blood. I could feel it, but I was not angry. I know I'm going to kill this guy one day, but I was not angry. अब ये चीज आप विजुअली कैसे दिखाओगे? उस आदमी के अंदर जो चल रहा है, जो सबसे बड़ी बात होती है ना, जो सेल्फ डायलॉग होता है, सबसे बड़ी तकलीफ वो है कि आप वो फिल्म में आप दिखाने में बहुत मुश्किल आती है। अब आपने जब लिखा तो अब लिख लिया द कैरेक्टर वाज थिंकिंग दिस, और बहुत ब्यूटीफुली लिखा है। अब हमने तो गॉडफादर फिल्म भी देखी है, अब इस सीन में मजा नहीं आया सर, क्योंकि हमको तो वो एक्सपेक्टेशन थी ना कि वो वार्मनेस ऑफ द ब्लड फील होना चाहिए, और वो आदमी के अंदर का जो कामनेस है कि हाँ नाक तोड़ दी, दर्द हो रहा है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ। बहुत ही मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल सीन है कि वो आदमी अभी तक एक आर्मी मैन था और इस सीन के बाद ही बिकेम द माफिया। अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी या फिल्म देखी तो हाईली रिकमेंडेड फिल्म है। ऐसा आमतौर पे माना जाता है कि कभी कोई किताब जब फिल्म में बनती है तो उतनी अच्छी नहीं बनती, और केवल एक्सेप्शन गॉडफादर माना जाता है कि एक बुक जो उतनी ही अच्छी फिल्म बनी, ऐसा गॉडफादर कहते हैं। तो अगर आप लिटरेचर के मतलब आई शुड से स्टूडेंट हैं किसी भी हालत में, मतलब आपको अच्छा लगता है तो आप यू शुड सी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आता है कि अच्छा अब आप बात करें इंस्टाग्राम की। नाउ इंस्टाग्राम अलाउज यू 90 सेकेंड्स ऑफ रील, राइट? यूट्यूब शॉर्ट 60 सेकेंड्स, तो ठीक है 60 to 90। अब 60 सेकंड में आपको अपनी बात कह देनी है, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। जब आप उसको, अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप 4 बार उसको कहेंगे कि अच्छा ये पॉइंट रह गया था, ये पॉइंट रह गया था, उसको वापस आप एडिट कर सकते हैं, बाद में आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंस्टा पे बना दी, एक बार रील अपलोड हो गई, अब शायद आपके पास उसको, अच्छा और चल गई गलती से थोड़ी सी, तो अब आपकी हिम्मत भी नहीं होती, बोला यार 50,000 व्यू आ गए इस पे, तो हाउ कैन आई इसको बंद करके मैं वापस क्यों चांस लूं। और यहाँ पे अच्छी बात यह है लेकिन इंस्टाग्राम के साथ कि व्यूअर को मालूम है कि 60 सेकंड से ज्यादा ये आदमी मुझे पकाने नहीं वाला, तो 60 सेकंड तक सर रुकता है। आप 10 मिनट का कोई कंटेंट डालिए, देयर इज अ चांस वो 10 सेकंड बाद आपको छोड़ के चला जाए, कहेगा यार 10 मिनट इस आदमी को मैं नहीं देख पाऊंगा। लेकिन 60 सेकंड का क्योंकि वीडियो है, तो समहाउ वो कहता नहीं यार थोड़ा देख लेते हैं, शायद आगे कुछ हो जाए। ज्यादा से ज्यादा कितना वेस्ट होगा, 1 मिनट वेस्ट होगा, 1.5 मिनट वेस्ट होगा। तो हर मीडियम की एक ब्यूटी है और लिमिटेशंस है, और हम भी सीख रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये होती है, अगर अपकमिंग आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब सोशल मीडिया कंटेंट बनाते होंगे, हमेशा एक चीज पे ध्यान दीजिए कि कौन से नए फीचर्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। क्योंकि हम इन दोनों पे काम करते हैं नॉर्मली। मान लीजिए आज इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर निकाला कोलैबोरेशन का, अभी तो टाइम हो गया उसको निकाले हुए, लेकिन जब 1-1.5 साल पहले कोलैबोरेशन फीचर निकाला था, उस टाइम ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कोलैबोरेशन का फीचर आया, लेकिन किसी ने देख लिया और उसने कोलैबोरेशन में कोई वीडियो बना दिया। नाउ इंस्टाग्राम इज गोइंग टू प्रमोट दैट वीडियो, क्योंकि उसका वो नया फीचर है, वो अपने नए फीचर को हमेशा प्रमोट करेगा। तो आप टेक्नोलॉजिकली आप अडेप्ट करते जाएं कि अच्छा ये नया, आप देखते रहिए, क्योंकि अदरवाइज यू विल भी, जैसे सर मार्केटिंग में होता है ना कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, या कई लोग होते हैं अर्ली अडेप्टर्स होते हैं,
और कई लेट अडेप्टर्स होते, तो लेट अडेप्टर्स को उतना फायदा नहीं होता ना, अर्ली अडेप्टर्स को होता तो थोड़ा टेक्नोलॉजिकली भी आप मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट कंटेंट ना सर, इट्स ऑल्सो अबाउट कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो दैट इज हाउ डिफरेंट डिफरेंट क्या कहेंगे उसको, प्लेटफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. Sir, I would like to take up a question. Naman is asking, sir, whom do you think deserves the credit for creating your interest into writing, or it's you only? और इट्स You only, you yourself. नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बोलना बहुत गलत हो जाएगा. देखिए, मैं जब ग्रेजुएशन में था मैं केवल अगाथा क्रिस्टी को पढ़ता था. मैंने पूरे ग्रेजुएशन में केवल अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल्स पढ़ी, और वो मतलब आई एम, दुनिया एडमायरर है उनकी, मैं भी एडमायरर हूँ उनकी. 40 से 50 नॉवल मैंने ग्रेजुएशन में, मैंने और किसी लेखक को पढ़ा ही नहीं. जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन MBA करने गया तो पहला ऑथर जो मैंने पढ़ा वो चेतन भगत साहब थे. उनकी नई किताब आई थी, उसका नाम था 5 Point Someone. समहाउ चेतन भगत को लोग बहुत डिनाउंस करते हैं, समहाउ आई डोंट नो, उनको बहुत लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ा हल्का लिखते हैं. चेतन भगत ने भारत के लोगों को अंग्रेजी पढ़ने पे मजबूर किया है, अंग्रेजी नॉवेल्स पढ़ने पे. ऐसा नहीं था कि पहले किताबें नहीं आती थी सर, पहले भी बहुत किताबें आती थी, लेकिन चेतन भगत मेड पीपल रीड नॉवेल्स. उसके बाद लोग थोड़े बेहतर राइटर्स पे स्विच हुए, लेकिन जो मार्केट क्रिएट किया है वो चेतन भगत ने किया. आपने कहा किस व्यक्ति से मैं इन्फ्लुएंस हुआ, तो मैं 2 लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ, एक चेतन भगत, एक जेफरी आर्चर. कैसे? राइटिंग करने की इच्छा हमेशा से थी, लेकिन लगता था भाई हम तो अच्छी राइटिंग कर ही नहीं सकते. होता है सब में सर, क्रिएटिव प्रोसेस में हर आदमी को सबसे ज्यादा डर इसी बात का रहता, मैंने कुछ आड़ा टेढ़ा लिख दिया तो लोग हंसेंगे. भाई आज सर हमने कुछ ऐसा लिख दिया जो इलॉजिकल है, तो लोग घर में आगे हंस के जाएंगे, कहेंगे यार तुम कुछ भी लिख देते हो. लेकिन चेतन भगत was also from IIM, मतलब I'm not from IIM, मतलब but he was a MBA student. I was also an MBA student. Then he became a banker. I also became a banker. मैंने कहा जब सर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता. ठीक है, वो मेरे से अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, मुझसे अच्छा लिख लेंगे, लेकिन जब एक MBA बैंकर वाला आदमी लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकता. दूसरी दिक्कत यह है कि बड़ी कहानियां कैसे लिखें, 300 पन्ने की नॉवल कैसे लिखें, इतनी तो नहीं लिख पाएंगे. तो जेफरी आर्चर साहब की शॉर्ट स्टोरीज बड़ी अच्छी हैं, कभी आप देखिएगा. अ क्विवर फुल ऑफ एरोज है, अ ट्विस्ट इन द टेल है, कैटो 9 टेल्स है, उनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस अमेजिंग है, आप देखिएगा. और हमेशा एंड में ट्विस्ट होता है ज्यादातर. तो मैंने कहा कि शॉर्ट स्टोरी क्यों ना लिखी जाए. तो शॉर्ट स्टोरी का जो फॉर्मेट था वो जेफरी आर्चर साहब से लिया, लिखने की हिम्मत चेतन भगत साहब से ली, मोर और लेस. तो आई थिंक मैं इन दोनों को क्रेडिट देता हूँ. मैंने अपनी शायद पहली बुक में प्रीफेस लिखा था, वो डाल नहीं पाया था, तो ये 2-3 लोगों को मैंने उसमें लिखने की कोशिश की थी, बट प्रीफेस गया ही नहीं फिर बाद में. तो अगली बुक में शायद मैं जरूर डालूंगा कि दे आर द पर्सन्स जिनके कारण मैंने राइटिंग की शुरुआत करी. जी. Yes, sir. So we also have one more question, that Yes. how can we summarize long story in a short format, and which point should we add if we are doing storytelling? देखिए मतलब एक एग्जिस्टिंग कहानी को अगर हम शॉर्ट में करना चाह रहे हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि अगर आज मैं गॉडफादर को समराइज करूंगा वो किसी भी हालत में उतनी अच्छी नहीं बन सकती. समवे और द अदर कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आप लोगों ने शायद हैरी पॉटर देखा होगा. हैरी पॉटर मतलब मैंने 7 किताबें पढ़ी हैं और 8 फिल्में देखी हैं उसकी. पहली 2 किताबें जो थी उस पे जो फिल्में बनी वो सेम टू सेम है, क्योंकि कंटेंट लिमिटेड था किताबों का. वो 2-2.5 घंटे की फिल्म आप दिखा सकते थे, लेकिन जैसे जैसे किताब मोटी होती गई, कंटेंट बढ़ता गया, तो आप वो सारी चीजें फिल्म में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि फिल्म किसी भी हालत में 2-2.5 घंटे से ज्यादा की नहीं बनेगी, भले मोटी कितनी किताब हो. तो यानी बहुत सारी चीजें छूट गई. इसी प्रकार से अगर आप एक बड़ी कहानी को, जो एग्जिस्टिंग कहानी, अगेन मैं कह रहा हूँ जो लोग पढ़ चुके हैं, अगर उसको आप शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो मत करिए, वेरी ऑनेस्टली. कोई ऐसी चीज है जो बहुत लंबी, अब महाभारत है साहब, अब महाभारत को अगर आप एक शॉर्ट स्टोरी में या रामायण को शॉर्ट स्टोरी में डालेंगे तो आपको लगता है आप डाल पाएंगे? हर आदमी कहेगा यार तुमने वो पॉइंट नहीं डाला, वो नहीं, क्योंकि दुनिया पढ़ चुकी है. तो फिर ऐसी कोई कहानी पकड़िए जो किसी ने नहीं पढ़ी हो, यहाँ थोड़ा सा स्मार्टली खेलिए. उसके बाद आप देखिए कि उस कहानी से आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा उठाया है. जैसे हम लोग कई बार फिल्म्स बनाते हैं, तो अभी हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे एक फिल्म बनाई. अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आप हो सकता है 5 पॉइंट उठाना चाहते हैं, होता है,
मत उठाइए एक पॉइंट, एक बार में एक पॉइंट उठाइए, क्योंकि जब हम मल्टीपल पॉइंट्स उठाते हैं तो हम मैसेज को डाइल्यूट कर देते हैं। हम लोग न्यूज वगैरह भी थोड़ा बनाते हैं, तो हमको एक लड़की मिली थी, शी वॉज प्रोटेस्टिंग अबाउट 8 थिंग्स। वो लड़की ने 8 ऐसे प्रोटेस्ट के चीजें ले रखी थी कि दुनिया में वल्गैरिटी भी खत्म होनी चाहिए, करप्शन भी खत्म होना चाहिए, 7-8 चीजें थी। अच्छा है, अच्छी बात है, बच्चा करो, लेकिन आप आगे नहीं जा पाओगे क्योंकि आपका मैसेज डाइल्यूटेड है। एक चीज को पकड़िए, एक चीज, एक मैसेज के साथ जाइए, तो वो जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस कहानी की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको उठा लो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि महाभारत है। अब महाभारत में आप, मुझे अगर कुछ उठाना होगा, मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं कर्ण और दुर्योधन को उठाऊंगा। कर्ण और दुर्योधन की कहानी आप लोग जानते होंगे। कर्ण को दुर्योधन ने चांस दिया आगे बढ़ने का। दुर्योधन ने दोस्ती में नहीं दिया, उसको पता था कि ये व्यक्ति कल मेरे काम आएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आपने मृत्युंजय पढ़ी हो, शिवाजी सामंता साहब की बहुत अच्छी किताब है, कि कर्ण को भी मालूम था कि दुर्योधन उसको यूज कर रहा है, लेकिन स्टिल उसने कहा कि चलो यूज कर रहा है तो करने दो, वो काम तो वही मेरे आया था जब मेरी जरूरत थी। इतना हैवी कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब मुझे नहीं लगता इससे हैवी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो और मुझे मंजूर है। अगर इस पोर्शन पे मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं कोई कहानी लिखूं, अब मैं पूरी महाभारत पे तो नहीं लिख सकता, ये मेरे लेवल से बहुत ऊपर की बात है, बट अच्छा, इसको भी मैं महाभारत के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखूंगा, मैं इसको कंटेम्प्रेरी लिखूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट मैंने वो उठाया है, लेकिन कहानी का परिवेश चेंज कर दिया। नहीं तो अगर मैंने वही महाभारत के टाइम पीरियड में उनके लिए हिसाब से लिखा, तो भाई मैं वेद व्यास से थोड़ी कंपटीशन कर सकता हूँ, उनसे अच्छा कुछ थोड़ी लिख दूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेटिंग्स चेंज कर दूंगा। मैं ले आऊंगा प्रोबेबली अभी की जो पॉलिटिकल सिनेरियो में ले आऊंगा, या मैं स्पोर्ट्स में ले आऊंगा, या मैं फिल्म मेकिंग में ले आऊंगा, या किसी भी मार्केट में ले आऊंगा, बट उस आइडिया को मैं फिर उस जगह नहीं रखूंगा। नहीं तो अगर आपने अब शोले है, अब आपने शोले को रीमेक करने की कोशिश की, क्या फायदा हुआ? क्योंकि शोले को तो आप उसी पर्सपेक्टिव में ले रहे थे, लेकिन शोले का अगर मैं चेंज करके उसको बिजनेस राइवलरी पे ले जाता कि दो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, एक आदमी हार रहा है, वो दो बाहर से एलिमेंट्स ले आया जो थोड़े से अनएथिकल हैं, और इसके थ्रू उन्होंने हरा दिया। नाउ इट इज नॉट शोले, बट इट हैज द हाउ शुड आई से, मतलब एसेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा बदमाशी करनी पड़ती है ऑनेस्टली, तो दिस इज व्हाट इट इज। So one aspect is this, that you have to have a central idea in your mind before you start writing. You know? Right. So, and if I relate it with the previous discussion, that you have to give some value. So Yes. that value should be clear in your mind, and then you should start your creative journey in whatever medium, whether you are writing a blog post or you are making a movie or an Instagram reel. So you should be clear in your mind that what is that one message, that value which I want to project, which my type of audience would love, right? And then I should start. अब जैसे एक फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, रांझना, तो रांझना में इतने एस्पेक्ट्स हैं कि वो स्टार्ट लव स्टोरी से होता है, फिर लव ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो पॉलिटिकल हो जाता है। तो अगर आप देखो तो उसमें तो सेंट्रल आइडिया क्या है फिर? तो सेंट्रल आइडिया उसमें ये एक लड़के का प्रेम एक लड़की के लिए। अगर वो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है तो कहानी कहीं ना कहीं टूट जाएगी। जैसे राजकुमार हिरानी, दुनिया जानती है उनको, और फेवरेट फिल्म मेकर है मेरे, और मेरे ख्याल से देश के पता नहीं कितने लोग फेवरेट फिल्म मेकर होंगे, मैं उनके देखता रहता हूँ इंटरव्यूज। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने कही, बोला हर फिल्म में, हर कहानी में एक प्रोटैगनिस्ट है जिसको कुछ चाहिए और जिसके आड़े कुछ आ रहा है। जो हमने पहले कन्फ्लिक्ट की बात करी, उन्होंने भी वही बात करी थी, मैंने वहां से नहीं उठा था, ये मेरा पहले का ही आइडिया था। उन्होंने कहा जब मैं संजू बना रहा था, द प्रॉब्लम विद संजू इज, मैं संजय दत्त की रियल लाइफ पे बना रहा हूँ कहानी। नाउ संजय दत्त डोंट वांट एनीथिंग इन हिज लाइफ, ही इज सच अ गाय, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से। अब जो प्रोटैगनिस्ट है उसको कुछ चाहिए ही नहीं, मैं कहानी कैसे बिल्ड करूं? तो उन्होंने बोला, हमने इस पे बहुत मंथन किया और लास्ट में कहा कि प्रोबेबली उन्होंने जो कन्फ्लिक्ट उठाया वो ये था कि ही वांट्स टू प्रूव ही इज नॉट अ टेररिस्ट। नाउ ही गॉट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फिल्म।
अब उसके आसपास उन्होंने पूरी कहानी बुन दी। अगर वो सेंट्रल आइडिया ही नहीं होता तो मतलब संजू वुड हैव बीन, आई डोंट नो व्हाट, कि बहुत हेवायर टाइप का। तो एक सेंट्रल आइडिया तो सर बहुत जरूरी है, उसके बिना तो यू कांट डू एनीथिंग। प्लीज। Yes, sir. So, like you also mentioned that your target audience is not that 140 crores. You just want like the people who like your content. राइट। So, my question is now like, what are your favorite techniques to keep those audience engaging? Because as you told, if it's a 10-minute video, they will leave in 10 seconds. So, राइट। how you can make your content that engaging, or you can keep your audience that engaging? देखिए, जैसे मुझे सेंट्रल आइडिया पता चल गया है, जो मेरा ऑडियंस है उसको क्या चाहिए, मुझे पता चल गया है कि मैं, चलिए थोड़ा सा मैं अलग चालू करता हूँ इसमें। एक बहुत बड़े राइटर हैं जिनका नाम है जेम्स पैटरसन, अगर आपने नाम सुना हो। वो 17 किताबें सर एक साल में छाप देते हैं, मतलब 17 किताबें वो एक साल में नॉवेल्स छाप देते हैं। तो मैं उनका एक मास्टर क्लास देख रहा था। उन्होंने, वो मास्टर क्लास था, उसकी स्टार्टिंग की आई एम स्टीफन किंग। अब स्टीफन किंग एक दूसरे राइटर है और उनकी मास्टर क्लास की स्टार्टिंग है आई एम स्टीफन किंग। उसके बाद उन्होंने कहा जो पहले 4 शब्द होते हैं आपकी कहानी के, वो ऑडियंस को हुक करने जरूरी है। अगर पहले 4 शब्दों में आपने हुक कर लिया तो आपने हुक कर लिया, नहीं तो क्या होगा, अगर आपने स्टार्ट किया सुबह हुई और सूरज उठा और थिंग्स लाइक दैट, हो सकता है ऑडियंस वहां तक पहुंचे ही नहीं मेन पॉइंट तक। तो इसी प्रकार से इसको हमारे यहाँ पे जो इंस्टाग्राम है या यूट्यूब में, इसको बहुत तेजी से यूज किया जाता है कि कैच दिए जाते हैं। अब दिक्कत यहाँ हो गई है कि लोगों ने बहुत ज्यादा उसको नेगेटिवली इस्तेमाल करना चालू कर दिया, जिसको क्लिक बेट कहता है। क्लिक बेटिंग कैसी होती है कि मैं जानबूझ के कैसा आपके सामने थंबनेल डालूंगा जो रियल नहीं है। मैं कह दूंगा क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, समथिंग लाइक दैट, क्या चाइना हमला करने वाला है ताइवान पे। अब हम जानते हैं ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बट यहाँ पे आप जानबूझ के एक ऐसा हुक डाल रहे हो कि आदमी आए और कम से कम वीडियो देख ले। अब ये दो एक्सट्रीम्स हैं। अगर मैं ऐसा हुक डालूंगा जो बाद में मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो 1 वीडियो 2 वीडियो लोग देख लेंगे, तीसरे वीडियो से कहेंगे भाई ये तो वैल्यू नहीं देते। लेकिन अगर एक आपका लॉयल फैन बेस बन गया है, अगर बन गया है तो यहाँ पे दे आर गोइंग टू वेट फॉर 30 सेकेंड्स। 1 मिनट का वीडियो है ना, वो कहेंगे चलो 30 सेकंड तक रुकते हैं, शायद एंड में कुछ आएगा। तो डिपेंड आप कौन सी जर्नी के कौन से प्रोसेस पे हैं। लेट्स से यू आर शाहरुख खान। शाहरुख खान 90 सेकंड के वीडियो में 85वें सेकंड पे कोई चीज वैल्यू की बोलेगा ना, लोग रुकेंगे। शाहरुख खान बोल रहे हैं ना, 85 सेकंड पे कुछ अच्छा बोलेंगे, हम रुकेंगे। बट आपने चालू किया, अब प्रोबेबली अभी हम नए लोग हैं, तो आपको वो हुक शुरुआत में देना पड़ेगा कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। जब मैंने यूट्यूब से चालू किया था तो यूट्यूब पे मेरे वीडियोस नहीं चले, क्योंकि वहां हुक ही नहीं था। मैं पूरा का पूरा कंटेंट पे फोकस था, क्योंकि उसमें मैं नॉलेज वाले और इकोनॉमी वगैरह के वीडियोस बनाता था। तो पहली बात तो ऑडियंस कम है, ऊपर से वो आप आओगे 2 मिनट 3 मिनट बाद उस पर आओगे। लेकिन अब अच्छी बात क्या हो गई है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन हो गई कि यहाँ कुछ वैल्यू मिलेगा। तो ये जो 0 to 1 वाला जो स्थिति होता है, आपने एक बुक भी सुनी होगी कि 0 to 1 जाना बड़ा मुश्किल होता है, 1 to 100 आप आसानी से चले जाते हैं। तो 0 to 1 में जो आप एंगेजमेंट की बात कर रही हैं कि आपके व्यूअर एंगेज कैसे हो रहा है, आपको यू नीड टू कीप ऑन ट्राइंग। क्या चल रहा है, आप एक चीज डालिए, आप देखिए लोगों का क्या रिएक्शन है, दूसरी चीज डाली क्या रिएक्शन है, तीसरी चीज डाली क्या रिएक्शन है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे मेरे 78,000 हो गए सब्सक्राइबर हो गए इंस्टाग्राम पर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत मैकेनिकल व्यक्ति हूँ, मैं स्टेटस अलग अलग डालता रहता हूँ और मैं देखता रहता हूँ कि किस पे मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर मैंने कोटेशन डाला लेट से, तो किसी का लाइक आया या नहीं आया, ठीक है। फिर मैं जिस दिन क्वेश्चन डाल देता हूँ स्टेटस पे, अचानक से 400-500 रिस्पॉन्स आ जाते हैं मिनिमम, क्योंकि एवरीबॉडी हैज अ अर्ज टू रिप्लाई। तो इसी प्रकार से जब आप कंटेंट बनाते हैं 1 मिनट वाला, अब जैसे हमने कोई मार्केटिंग की स्टडी डाली तो हमने देखा कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आया, हमने जोक डाला तो देखा क्या रिस्पॉन्स आया, हमने देखा कि भाई ह्यूमन वैल्यूज की बात करी, या मतलब तो मैंने देखा जो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्स आता है वो ह्यूमन स्टोरीज पे आता है।
एक किताब है फॉर ह्यूमन काइंड, मैंने शुरुआत की थोड़ी सी पढ़ी थी। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज लिखी। उन्होंने कहा कि लोग मानते हैं कि दुनिया में हर आदमी जो है वो नेगेटिव है, वो आपको यूज करना चाहता है, बट उस किताब में उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की थी कि पीपल आर वेरी गुड एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन द वर्ल्ड जब अनजान लोगों ने अनजान लोगों के लिए जान तक दे दी। टाइटैनिक डूब रहा है, आपकी सीट अवेलेबल है जिसमें आप बोट से जा सकते हैं, लोगों ने कहा नहीं आप जाइए। दिस हैज हैपेंड। यानी ये सोचना कि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर गुड, दे वांट टू हियर गुड स्टोरीज। नेगेटिविटी सेल्स वेरी इजीली, ऑनेस्टली। अगर मैं भी आपको बोलना चालू कर दूंगा ना यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी कि दुनिया खराब है ना, और जीवन में आप मेहनत कर लीजिए, मेहनत का कोई रिप्लाई नहीं मिलता, आप ये ना अच्छे आदमी के साथ कभी अच्छा नहीं होता, ये तो आपने 500 बार सुना होगा, एंड समवेयर और द अदर आप बहुत रिलेट कर दो, हाँ यार अच्छा है। लेकिन भाई पॉजिटिविटी बेचना मुश्किल है, ये कहना नहीं अच्छा होगा तुम्हारा साथ। तो मेरा ऑडियंस, मैंने कहा ना 140 करोड़ लोग नहीं है, मैंने कहा कि हर आदमी नेगेटिविटी बेच रहा है, मैं पॉजिटिविटी बेचूंगा। तो मैंने पहले उन लोगों को अलग कर दिया जो मुझे नहीं चाहिए, अब उनके ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज में डालता हूँ। जैसे अभी बीच में मेरा सर ग्रोथ थोड़ा सा कम हो गया था, थोड़ा स्लो हो गया था, पहले हजार लोग बढ़ते थे दिन में, फिर वो 150 पे आ गए थे। फिर मैंने एक कहानी डाली थी पोलैंड के प्रधानमंत्री के ऊपर, और मुझे लग रहा था वो कहानी नहीं चलेगी ईशान, है ठीक है, मुझे भाई लग रहा था कि वो कहानी बिल्कुल नहीं चलेगी, और वो 1 मिलियन व्यू हो गए उसके। तो आपको नहीं मालूम क्या कंटेंट चलेगा, आपको यू नीड टू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग आर्यन। आपको पता होना चाहिए कि मतलब आप यू कैन नेवर बी श्योर। अभी मैंने लास्ट कहानी जो डाली मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी कहानी है, कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था, तो आप कहेंगे एडमंड हिलेरी चढ़ा था, लेकिन हो सकता है जॉर्ज मेलोरी चढ़ा था, वो कहानी है। अब ये कहानी ढूंढ के लाना दूसरा पार्ट है, ऐसी कहानियां जिन पे लोगों ने चर्चाएं नहीं की है या कम की है, तो ये रिसोर्सेज ढूंढना है, ये रिसोर्सेज डेवलप करना है आपको, कि मैं कहाँ से ऐसी कहानियां उठा सकता हूं, क्योंकि हर कहानी तो सर मुझे नहीं मालूम, सेकेंडरी सोर्सेज हैं। तो सेकेंडरी सोर्सेज में जो आपको अच्छा लग रहा है वो पिक करिए और वो बाजार में डालिए। अब वो कौन पिक करता है कौन नहीं करता है, ये कुछ ना कुछ तो भगवान और बाकी एल्गोरिदम के भरोसे है। बाकी तो एक वही है, मोमेंटम वाली बात है बाकी तो। हमने नेगेटिविटी की बात करी जैसे अभी, जी तो ईशा व्यास का एक क्वेश्चन है जी। कि सर वी आर हैविंग अ सीरियस सोशल इशू फॉर विच द एग्जांपल और स्टोरी विच वी यूज इज डार्क and can have a heavy impact. राइट। So should we bifurcate some parts of the story? So basically, our negative story or example which is explaining your point should be used. Will the audience be okay with it? मैं थोड़ा सा इसमें और समझ नहीं पाया, थोड़ा सवाल मेरे को थोड़ा समझाइए, मैं शायद समझ बेसिकली नहीं वो पाया। कहना चाहती है कि मतलब कोई अगर अपन सीरियस इशू को अपन बता रहे हैं और उसमें नेगेटिव एग्जांपल है एक और या नेगेटिव स्टोरी है, तो क्या हमें वो बतानी चाहिए उसी वे में? ऑडियंस क्या ले पाएगी उस चीज को? ये मैनेजमेंट का सवाल है ये एक्चुअली। अब मैं देखिए, मैं बहुत ऑनेस्ट आपको जवाब देता हूँ। आई टेक माई वर्क वेरी प्रोफेशनली। है उसका एक मोरालिटी का एस्पेक्ट है, उसका एक सामाजिक एस्पेक्ट है, लेकिन अगर आज मैं मेरी कोर ऑडियंस को वो चीज नहीं दे रहा हूं जो उनको चाहिए, तो मेरी ऑडियंस एलियनेट हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक जागृति प्रकाश करके एक वो है, इंस्टाग्रामर है। मैं नॉर्मली किसी को बहुत ह्यूमर के लिए मैं किसी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि बहुत ह्यूमर क्वालिटी अच्छी नहीं है लोगों में। एक जागृति प्रकाश करके हैं, मुझे उनकी मतलब आई लाइक हर, उनका कॉमेडी मुझे टाइमिंग पसंद है। कल उन्होंने जो इंस्टाग्राम की स्टोरी डाली वो गांव के ऊपर डाल की उन्होंने, एंड आई वाज वेटिंग कि कहाँ पे पंच आएगा। देयर वाज नो पंच। सिंपल, गांव में रहना बहुत अच्छा है, यहाँ गाय हैं, यहाँ पानी है, यहाँ जंगल है, एंड आई वाज लाइक कि अब आएगा अब आएगा, अब वो नहीं आया। कहीं ना कहीं उन्होंने शायद ये चीज रियलाइज करी, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद उनका एक स्टेटस आया जिसमें लिखा था कि मैंने ये जो वीडियो डाला था कॉमेडी का नहीं था, वुड यू लाइक सच काइंड ऑफ वीडियोस। लोग मजबूरी में हाँ बोल देंगे आपको, नोबडी वांट्स टू बी डिसकर्टियस, बट मुझे तो मजा नहीं आया। मैं तो बहुत पसंद करता हूँ उनके स्टेटस को, बट मुझे समझो अच्छा, हम बोल नहीं सकते कि गांव की स्टोरी है, पब्लिकली हम कैसे बोल दें कि मजा नहीं आया, क्योंकि पब्लिक एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है।
कि हम कैसे मना कर दे कि मजा नहीं आया, तो मैं मन मार के कहूंगा हाँ मैडम अच्छा था, आप और बनाइए। अब वो और बनाएंगी, मेरे जैसे और लोग हट जाएंगे। तो नेगेटिव चीजें आप बता रहे हैं, क्या मैं उससे कुछ पॉजिटिविटी ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? एक चैलेंजर का आई थिंक एक वीडियो डाला था सर, कि चैलेंजर करके एक स्पेस शटल, आई थिंक चैलेंजर ही नाम था नासा ने लॉन्च किया था उसे, और कई इंजीनियर्स ने मना किया था लॉन्च करने से, बोला था ठंड बहुत ज्यादा है, द रॉकेट कैन मल फंक्शन। बट उनके ऊपर प्रेशर बहुत था नासा पे, क्योंकि 2-3 बार डिले हो चुका था। तो दे समहाउ ओवरराइड किया उनको, और उन्होंने सॉरी लॉन्च कर दिया। ठंड उतनी हो गई जितनी एक्सपेक्टेड थी या ज्यादा हो गई उससे। आई थिंक 8 पीपल डाइड। नाउ दिस इज अ वेरी नेगेटिव स्टोरी वेर यू आर टेलिंग पीपल कि यार 8 एस्ट्रोनॉट मारे गए। कैन यू ड्रॉ अ पॉजिटिव कंक्लूजन? द पॉजिटिव कंक्लूजन वाज प्रेशर में मत आना कभी, जो सही है वो सही है। क्योंकि उसके बाद जो रिग्रेट होगा, प्रेशर में जो आपने एक आके गलत डिसीजन ले लिया, उसके बाद वो रिग्रेट आपको जीवन भर रहेगा। जिस इंजीनियर ने कहा था मत करो लॉन्च, वो दुखी होगा, लेकिन वो रिग्रेट में नहीं होगा, वो कहेगा यार मैंने तो ट्राई किया था। तो हमने उस नेगेटिव चीज को थोड़ा सा पॉजिटिव कर लिया। अब टाइटैनिक डूबा था, इट्स अ वेरी नेगेटिव स्टोरी। कैन आई फाइंड अ पॉजिटिव एस्पेक्ट समवेयर? तो प्रोबेबली जो मैंने आपसे कहा कि उस टाइम भी कोई कह रहा था आप मेरी सीट ले लो। तो एंडिंग जो होती है ना, वो कहानी का वेर यू लीव द ऑडियंस विथ। आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने। डू यू नो मिल्खा सिंह अपनी हर रेस को जीते थे, लेकिन लास्ट रेस में वो 4th आए थे ओलंपिक्स में। अब अगर मैं मिल्खा सिंह के ऊपर सर बायोपिक बना रहा हूँ, और उसमें मैं दिखा रहा हूँ कि सारी चीजें पॉजिटिव और लास्ट में हार गए, तो लोग कहेंगे यार ये कैसी कहानी है, अंत में तो आप हार गए। तो व्हाट द मेकर डिड, वो जो हारने वाला शॉट था, वो फिल्म की शुरुआत में दिखा दिया। दिखाना तो पड़ेगा, ओलंपिक में हारे तो थे, 4थे नंबर पे तो आए थे, उसके बिना फिल्म कैसे बनेगी? लेकिन उन्होंने उसको ओपनिंग में दिखाया, और पूरी फिल्म फ्लैशबैक में। और जो हाई पॉइंट ऑफ द कैरियर था, जब उनको फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी, वहां पे उन्होंने एंड कर दिया। तो नेगेटिविटी है, तो मैं नेगेटिविटी पसंद नहीं करता। कोई व्यक्ति आएगा इंस्टाग्राम पे, मेरे चैनल पे, ही शुड और शी शुड फील पॉजिटिव। आई टेल यू समथिंग सर, आई हैव गॉट मैसेजेस, देवेश्वर सर, शर्मा सर, sir we were suicidal and your videos somewhere gave us some hope. I've literally got such calls and messages. ये आर्यन जो वो है ना, इसका कमाई, कि किसी आदमी को आपने बिल्कुल ब्रिंक से बोल दिया बेटा पीछे आ जाओ यार, उसको कोई सक्सेस बीट नहीं कर सकती। एंड मैं क्यों नेगेटिव दूं किसी को? मुझे नहीं देना। इट्स नॉट इवन अबाउट बिजनेस। बिजनेस है सर, बिल्कुल है, मैं तो एमबीए प्रोफेशनल हूँ, मैं कोई क्वाम्स नहीं है मुझे, मैं कोई नहीं कहता सामाजिकता कर रहा हूँ, सामाजिकता हो रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपना ब्रांडिंग बढ़ा रहा हूँ सर। मैं यहाँ आके आपसे ये नहीं कहूंगा कि मैं मेरे व्यूअर्स नहीं बढ़ाना चाहता, या मैं तो चाहता हूँ 10 करोड़ लोग देखें मुझे, लेकिन हाँ उनको मैं परोस क्या रहा हूँ? सर बताओ, हर व्यक्ति नेगेटिव होता है सर, शर्मा सर, और जब वो सबसे ज्यादा परेशान है, उस दिन कोई आदमी आके उसको डिप्रेस कर दे, वो नहीं मर रहा होगा ना सर, उस दिन मर जाएगा। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत मानता हूँ सर, तो उसमें ऐसा मानते हैं कि जो दिन भर आप देखते हैं वो वैसा होने लगता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी, उन्होंने कहा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे प्रोफाइल्स को फॉलो करते होंगे, जो जो नेगेटिव बता रहे हैं ना सबको हटा दो। पॉजिटिव कोट्स, पॉजिटिव वीडियोस, म्यूजिक, उसको फॉलो करो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फॉलो करो, आप देखोगे आप कुछ नया जानोगे, तो आप कहोगे नहीं यार जीवन बेहतर है। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू गिव, आई विल ट्राई। अब किसी दिन मूड बहुत खराब हुआ मैंने डाल दिया तो अलग बात है, बट कॉन्शियसली आई विल नेवर गिव अ नेगेटिव स्टोरी। इट शुड एटलीस्ट हैव अ पॉजिटिव एंड। यस सर, प्लीज। Yes, sir. So yes, definitely Isha got her answer. So many questions are coming for you from the audience, so we'll take it afterwards. Yeah, So I sure. want to ask, which is the specific project that made you proud? Your specific project, All right. and how did you promote it, and what made it stand out? Okay. So
कैन आई टॉक अबाउट 2-3 प्रोजेक्ट्स इफ यू डोंट माइंड? Yes. तो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था जो मुझे लगता वो था द अनइनवाइटेड गेस्ट। ये उसका थोड़ा सा स्टोरी बैकग्राउंड देता हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मेरे को शॉर्ट फिल्म बनाने का बहुत सालों से शौक था। रिसोर्स नहीं थे, नॉलेज नहीं था, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। तो वाइल आई वाज वर्किंग इन स्टेट बैंक, मैंने कहा यार शॉर्ट फिल्म बनाता है। और वो शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए पैसा तो है नहीं, या अपने को तो पता भी नहीं कि कैमरा क्या होता है, लाइट क्या होती है। अपने को तो लगा कैमरा ले आएंगे सब हो जाएगा, लाइटिंग वाइटिंग कोई चीज़ होती मालूम नहीं था। तो सबसे पहले तो एक्टर चाहिए। तो ऐसी कहानी लिखी जो 2 लोगों के बीच में और एक कमरे के अंदर हो। तो पहले एक ऐसी कहानी लिखी सर जो बहुत ही स्पेसिफिक एरिया में हो, क्योंकि मेरे घर के रूम को यूज कर लेंगे। 2 लोगों की लिखी, क्योंकि भाई 2 लोग, मैं और मेरा फ्रेंड, एक कैमरा जाके खरीद लिया। बट वो टर्न आउट नहीं हुई, संभव वो नहीं कर पाया हम, क्योंकि हमको आता ही नहीं था। फिर वो बुक में भी मैंने छापी थी, वही कहानी थी जो उस लड़के ने सुनी थी यूट्यूब पे और कहा था इस पे शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। और वो शायद मेरा अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि उस पर हमने कम से कम, अब वो इंग्लिश में लिखी है सर, अगेन इंग्लिश में लिखी है, फिल्म शॉर्ट फिल्म बनेगी हिंदी में। तो अब उसके डायलॉग्स लिखने, डायलॉग्स 3-4 बार रीराइट किए, कंटेक्चुअल। अब उसमें कई ऐसी चीजें, सस्पेंस थ्रिलर है वो, तो अब किस प्रकार से उसका फॉर्मेटिंग चेंज होगा, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। और वो अंत में लोगों को बहुत पसंद आई। एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब पे है वो फिल्म, तो लोगों को पसंद आई। एक वो थी। दूसरी थी द मूविंग ट्रेन मिस्ट्री। मूविंग ट्रेन मिस्ट्री मतलब बेसिकली ट्रेन जा रही है सर, उसमें ट्रेन में एक डब्बा है जो आइसोलेटेड डब्बा है, यानी बाकी डब्बों से वो कनेक्टेड नहीं है। वहां मर्डर हो जाता है। 2 लोग हैं उसमें, एक महिला है और एक पुरुष है। महिला का मर्डर हो गया चलती ट्रेन में, पुरुष ने किया नहीं है, तो किसने किया है, ये उसका बेसिक था। लेकिन अब मुझे इसकी जो स्ट्रक्चरिंग थी उसमें 6 साल लग गए। स्ट्रक्चरिंग कैसे कि भाई स्टार्टिंग में मर्डर दिखाना है, एंड में दिखाना है, आदमी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा गया तो एंडिंग क्या है। तो उसमें सोचते सोचते मैंने इसको पूरा फ्लैशबैक में डाला कि 2 लोग उसी ट्रेन के उसी डब्बे में जा रहे हैं एंड दे आर डिस्कसिंग अ क्राइम दैट हैपेंड ईयर्स अगो। तो ये बड़ा लोगों को बहुत पसंद आई थी ये कहानी एक्चुअली। ये मेरे लिए बड़ी मतलब थी, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चरिंग में मेरे को बहुत टाइम लगा। कहानी तो मालूम है, आइडिया भी है। एक तीसरी कहानी थी, उसमें ये हुआ था कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, मतलब प्रभात अज्यूम करो कि एक आदमी है, उसका मर्डर हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। और वो मरते हुए पुलिस वाले को कह के गया कि ये तो कुछ भी नहीं, अगला क्राइम 18 साल बाद होगा। मैंने वाज फैसिनेटेड, मैंने कहा वाह। मैंने कहा आगे क्या हुआ बताओ। बोला ये इतना ही सोचा है, आगे तुम सोचो। मैंने कहा यार तुमने एक तो अजीब सा एक दे दिया। तो आई थॉट फॉर हाफ एन आवर एंड आई गॉट द आइडिया। आई चेंज्ड अ फ्यू थिंग्स। मैंने कहा जो मर रहा है, हाउ विल ही नो कि 18 साल बाद दूसरा क्राइम हो रहा है, इट्स अ रिलेटिवली इम्प्रोबेबल थिंग। तो लेट से जो मार रहा है ही विल से कि 18 साल बाद मर्डर होगा। फिर 18 को 12 साल किया, क्योंकि मुझे मेरे कैलकुलेशंस, द मैथमेटिक्स ऑफ मर्डर उस कहानी का नाम लिखा था। और तीसरा वो चाह रहा था ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो, कि पाकिस्तान इंडिया में कुछ 12 साल बाद करने वाला। हमने कहा 12 साल पाकिस्तान नहीं रुकेगा, उसे कुछ करना होगा। तो लेट्स मेक इट अ वेरी पर्सनल थिंग, एक फैमिली के बीच में कुछ चल रहा है। तो आई एम प्राउड ऑफ दैट कि इतना एक टिपिकल कॉन्सेप्ट आया था एंड फॉर हाफ एन आवर सर आई वाज एबल टू क्रैक इट। और लास्ट में एक कहानी है नंदिनी, वो शायद मेरी फेवरेट कहानी आज तक की, पब्लिश नहीं है वो। उसकी ब्यूटी ये है सर कि कैन आई शेयर द स्टोरी? Yes, yes, you can. कहानी है एक लड़की की जो अपने फादर से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और वो हमेशा उनके हिसाब से काम करती है। और शी इज लाइक ही इज द राइट पर्सन, वो मेरे लिए जीवन में सही डिसीजंस लेंगे। और देन शी जॉइंस फैशन हाउस। वहाँ का जो बॉस है ही इज लाइक अ वेरी अलग लेवल का आदमी है, मतलब बहुत पॉजिटिव आदमी है और लोगों से कहता है रिस्क लो। और इस लड़की में चेंजेस आने लगते हैं उस व्यक्ति की मेंटरशिप में। अब होता ही है कि दिस गर्ल स्टार्ट्स लाइकिंग अनदर गाय। ये बॉस और इसके बीच में कोई रोमांटिक एंगल नहीं है। वो एक लड़का पसंद आता है, द बॉस वॉचेस देम, देन ही सेज इट्स यू नो मतलब दैट्स वेरी एम्बिशियस ऑफ योर्स। तुम जिस लड़के को देख रही हो तुम उसको देखो और अपने आप को देखो,
डेवलप नहीं हो रहा, बट वी ऑल नीड अ लिटिल इम्पॉसिबल इन अवर लाइफ। लेकिन जीवन में कुछ तो ऐसा चाहिए होता है ना जो थोड़ा सा मुश्किल हो प्राप्त करना, तो ये है। अब इसके फादर लड़की की शादी कहीं तय कर देते हैं। ये मैं धीरे धीरे एक एक पेज लिख रहा था इस कहानी का, एंड आई वाज गिविंग इट टू अ फ्रेंड। माय फ्रेंड सेड वन डे, शी सेड कि ओ मैं जानना चाहती हूँ उस लड़की के साथ क्या हुआ, बट मैं ये भी जानना चाहती हूँ उसके बॉस के साथ क्या हुआ। तो मैंने रियलाइज किया कि बॉस का तो मैंने आर्क खत्म ही नहीं किया है। मेरा पूरा फोकस नंदिनी पे है कि नंदिनी यहाँ से आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। लेकिन उसका जो बॉस, उसका जो मेंटर है, उसकी कहानी तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। तो मैंने उसको रियलाइज नहीं होने दिया कि मैंने नहीं सोचा है। मैंने कहा नहीं नहीं लिख रहा हूँ। देन आई चेंज द स्टोरी। मोर स्पेसिफिकली ये कहानी शुरुआत में मैंने एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी, सोची थी, लेकिन मैंने उसको बाद में उसको लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया। मैंने कहा कि एक लड़का जो अपने फादर की हर बात मानता है, ये डोसाइल है, ये शायद लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आई चेंज्ड इट कि प्रोबेबली फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू लोग शायद ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। इट नथिंग टू डू विथ, ऐसा मत मानिएगा, फेमिनिज्म के खिलाफ कुछ नहीं था। इट वाज मोर की शायद एक्सेप्टेबल होगा। नाउ दिस गर्ल इज हैविंग, उसके फादर ने कहा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का चूज कर लिया मैंने। नाउ अब ये लड़की परेशान, क्योंकि उसको तो दूसरा लड़का पसंद है। और पहली बार अपने फादर से कहती है कि आपने मेरे लिए ये डिसीजन कैसे ले लिया, आई शुड टेक माई ओन डिसीजन। और इसका फादर इज टेकन अप बैक कि बोला जीवन में तो लड़की ने ऐसा नहीं बोला। फिर ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि नहीं यार ठीक है, मतलब ही इज नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर। ही सेज यार ठीक है कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया है तो मिल ले एक बार लड़के से, फिर मना कर देना तो मेरी इज्जत भी रह जाएगी, और तू मना कर देना। तो लड़की से ओके। नो दिस इज द सेम गाय शी लाइक्स, दिस इज द सेम गाय शी लाइक्स, जिसको वो ऑफिस में पसंद करती है। इतनी कहानी हो गई। अगले दिन द क्लाइमेक्स इज, वो अगले दिन ऑफिस गई। ऑफिस में उसने अपने बॉस को बताया ऐसा ऐसा हुआ। नो बॉस इज, अरे हाँ बोल दिया ना तूने? बोला नहीं, ना बोल दिया मैंने। बॉस इज टेकन, ना बोल दिया, ना काय को बोल दिया? बोला यार मेरे जीवन में मेरे फादर ने हर डिसीजन मेरे लिए लिया और अच्छा लिया। अगर आज मैं इस डिसीजन के साथ हाँ बोल देती तो ये चीज हो जाती ना, सीमेंट हो जाती कि मेरा फादर ही बेस्ट जानता है मेरे लिए। अगर उस लड़के को मैंने हाँ बोल दिया आज, इट मीन्स कि हाँ आज भी वो सही थे। एक मौका जीवन में था कि उनसे अलग मैं एक सोच विकसित कर पाऊं, वो नहीं कर पाती मैं। तो उसका बॉस इज लाइक कि तुम हैवान बन चुकी हो, तुम जैसी आई थी और अब तुम क्या हो गई हो। मतलब दिस इज अ ब्लडी डायनामिक थिंग टू से ना, नहीं करती क्यों? बोला क्योंकि अब मैं फ्री हूँ। फिर शी सेड कि मैं 10 मिनट के ब्रेक पे जा रही हूँ। बोला कहाँ जा रही हो? बोला लड़के को प्रपोज करने जा रही हूँ। What? बोला कल मना किया है। बोला हाँ बट अपने बल पे चाहिए लड़का, फादर ने सिलेक्ट किया है तो उसमें मेरा क्या दम था? ही शुड लाइक मी। बोला वो तो गाली देगा तेरे को, कल तूने भगाया उसको अपने घर से। तो वो कहती है बट वी ऑल नीड अ लिटिल इम्पॉसिबल इन अवर लाइफ, इट शुड बी समथिंग। है डिफिकल्ट करूंगा तो दिस इज लाइक द आर्क ऑफ दैट गर्ल। मतलब मैंने लिखी है बट मतलब प्रोबेबली माय बेस्ट स्टोरी। और इट वाज अ टाइम व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू सम इमोशनल थिंग्स। तो अ लॉट ऑफ इमोशनल थिंग्स केम देयर। मैं अभी तक जितनी उससे पहले कहानियां लिखता था सर, दे वर वेरी फंक्शनल, कि मर्डर हो गया, वो आया उसने गोली मारी वो चला गया, नॉट अ लॉट ऑफ इमोशनल एंगल्स। बट फ्रॉम दिस स्टोरी ऑनवर्ड्स, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग्स, देन दैट चेंज माय आर्क। अब वो थोड़ा इमोशन कहीं से, तो ये प्रोबेबली दिस इज माय बेस्ट स्टोरी। और आई थिंक दैट इज मैंने आपको इसलिए सुना दी क्योंकि मुझे लगा कि शायद आप लोग को कभी पढ़ा नहीं पाऊंगा वो कहानी, तो थोड़ा सा मैं एम्बिशियस हो गया और आपको सुना दी, सॉरी। Yes, Aryan. Yes, so there's one more question being asked by Ria Panjwani. Like, Right. can you share some memorable reaction or feedback from your viewers about your stories? स्टोरीज, स्टोरीज में ये रहा ईशा की, मैक्सिमम टाइम कहानियां तो मैं जब लिखता था तो अपने दोस्तों को, मेरे मौसा जी को, एक बहुत ही क्लोज नेट लोगों को भेजता था। तो समवेयर और द अदर दे रियलाइज्ड कि ट्विस्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो दे वर एबल टू प्रीएम्प्ट मी समटाइम्स। जब मैंने बुक लिखी तो बुक लिखने में दिक्कत यह है कि अब वो किताबें किसने खरीदी हैं और उनके रिएक्शंस क्या आएंगे, बड़ा डिफिकल्ट था।
कि वो एक्चुअली आप हाउ विल यू नो कि जो आदमी पढ़ रहा है। बट मुझे जो अच्छी चीज लगी उस पूरी प्रोसेस में, एटलीस्ट फ्रॉम द बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ, वो ये थी कि जो फर्स्ट टाइम रीडर्स उन्होंने किताब पढ़ी। यानी नॉर्मली किताबें जब पहली बार कोई आदमी पढ़ना चालू करता है तो डिफिकल्ट बुक्स होती हैं तो वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बट कई ऐसे रीडर्स थे जिन्होंने वो बुक कंप्लीट करी। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी एक बहुत यूनिक लर्निंग आई बुक से। 12 कहानियां थी, हर व्यक्ति को कोई एक कहानी पसंद आई और एक बिल्कुल पसंद नहीं आई। यानी कोई, जैसे मैंने आपको मर्डर ट्रेन मिस्ट्री के बारे में बताया, एवरीबडी लाइक दैट स्टोरी बट वन ऑफ माय फ्रेंड शी डिडंट लाइक इट। बोला इतना दम नहीं था। फर्स्ट स्टोरी जो मैंने जीवन की पहली कहानी लिखी थी, फर्स्ट टाइम रीडर्स को किसी को पसंद नहीं आई, बट हैबिचुअल रीडर्स को बहुत पसंद आई। यानी हर कहानी किसी आदमी के लिए बहुत अच्छी थी और वही कहानी कोई कह रहा था कचरा है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इट्स नॉट कि स्टोरी अच्छी है कि बुरी है, वो ऑडियंस का व्यू है। तो वो जो चीज सीखी वहां से, ये सीखी कि यू डोंट नीड टू बिकम डिसहार्टेंड कि किसी को पसंद नहीं आई। हमने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था बस स्टॉप। उसमें क्या है, लड़की है, उस पूरी की पूरी उस शॉर्ट फिल्म में वो लड़की का कोई एक डायलॉग है, अश्विन, और बाकी वो ऐसे खड़ी है। एवरीबडी सेड कि उस लड़की को काय को लिया, वो बेचारी को कोई सीन ही नहीं है, वो लड़की के माँ बाप उसको गाली बक रहे हैं, कह रहे क्यों कर रहे हो ऐसे, एक्टिंग क्यों कर रही हो, उसमें कुछ नहीं है भाई। अब हमने भी कहा यार हम जानते कुछ नहीं था, तुमको नेक्स्ट फिल्म में कुछ अच्छा रोल देंगे। बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी फ्रॉम पुणे, बोला उस स्टोरी में बेस्ट वो लड़की थी। मैंने कहा अच्छा? बोला हाँ। बोला जो एक्सप्रेशन था ये था वो था, हमने उसको कभी बताया नहीं कि सब लोग गाली दे रहे हैं उस लड़की को। तो एक चीज समझ में आई कि एक चीज जो किसी को पसंद नहीं आ रही शायद किसी को बहुत पसंद आ रही होगी, ये शायद। और बाकी ट्विस्ट एंडिंग्स फिल्मों में भी होती हैं। तो एक बार हमने फिल्म बनाई थी तो लोग कह रहे हमको लग रहा बड़ा इमोशनल एंड होगा, तुमने तो अलग ही एंड दे दिया। तो मतलब मोर और लेस यही रहता है उसमें। प्लीज। Okay, sir. So, like, what motivates you to create the content you put on your Instagram, YouTube, like business case, book summaries, etc.? And why do you feel that there is a need of this type of content? And like, do you think like this generation do not have that habit of reading books and newspaper, and they are very less aware about their environment and surrounding? What opinion do you have about this? मैं खुद एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ब्रांडिंग में, बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है इन इटसेल्फ। जो बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हुए हैं कि किसी किसी कंपनी ने अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मुझे उस पर वीडियोस नेचुरली बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है ऐसा कंटेंट मुझे इंटरनेट पे कम मिलता है और मैं ऐसा कंटेंट देखना चाहता हूँ। देखिए आप समझिए, अगर आप इफ यू आर सीरियस एज अ मेकर, गैप्स हैं हर जगह पर। यानी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ऐसा कौन सा कंटेंट है जो आप देखना चाहते हैं और अवेलेबल नहीं है, वो आपके लिए नीश है। आप समझे ना? मुझे पॉजिटिव वीडियोस चाहिए, लेकिन मेरे को क्या रिसाइकल्ड पॉजिटिव वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है। संदीप माहेश्वरी मुझे थोड़े से वो लगते हैं, आर्टिफिशियल लगते हैं। सॉरी, कुछ को बुरा लगेगा शायद। मैंने उनके पुराने वीडियोस नहीं देखे, लोग कहते तब वो ऐसे नहीं थे। अब वो समहाउ ड्यू टू द प्रेशर कि उनको कंटेंट रेगुलर बनाना है, तो शायद अब वो थोड़ा सा बनाना मजबूरी है। मुझे चाहिए ऑनेस्टी, मुझे चाहिए जेन्युइननेस। गलती हो गई ना वीडियो में तो वहीं पे सॉरी गलत बोल दिया, आगे चलते हैं। मुझे परफेक्ट वीडियो नहीं बनाना है। जैसे अंकुर वारिक को मुझे शुरुआत में बहुत इरिटेट करते थे, बट मैंने फिर उनके कंटेंट को देखा, पढ़ा बुक उनकी, तो मुझे लगा नहीं, इज अ बेटर गाय। कम से कम वो अपनी गलतियां मानने है। जब मैं एमबीए में था तो मैंने एक सवाल अपने मित्रों से पूछा। मैंने कहा कि हम लोग कॉटलर पढ़ते हैं, आप सब कॉटलर पढ़ते हैं, तो क्या आईएम अहमदाबाद के लिए कोई अलग कॉटलर साहब ने बुक लिखी है? शायद ऐसा तो नहीं होगा। आपने भी वही पढ़ी होगी जयपुरिया में जो मैंने आईएमएस में पढ़ी होगी, जो मैं आईपर में शायद पढ़ा रहा हूँ, जो आईएम अहमदाबाद का लड़का पढ़ रहा है। तो वाई ही इज गोइंग देयर एंड वी आर हियर एंड शी इज गोइंग देयर एंड वी आर हियर? तो प्रोबेबली द एनवायरमेंट, प्रोबेबली द फैकल्टीज, प्रोबेबली द स्टूडेंट्स। यानी आज अगर मुझे, मैंने भी उस टाइम बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने भी कॉटलर नहीं पढ़ी, मैंने भी शिफमैन नहीं पढ़ी, अब मैं पढ़ाते हुए पढ़ रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे उसमें। अगर उस टाइम पढ़े होते तो शायद मैं अपने लाइफ में अलग प्रकार से उनको इम्प्लीमेंट करता।
तो मेरे जो बच्चे हैं जो टॉप MBA कॉलेजेस के नहीं है, जो शायद एक IIM के नहीं है, थोड़े से उससे नीचे हैं, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कि क्या डिस्कशंस होते हैं, क्या केस स्टडीज हुई हैं। किताबें हैं, किताबों ने मेरा जीवन बहुत चेंज किया है। मैं बहुत रीडिंग करता हूँ, अभी तो कम हो गई, बट आई एम एविड रीडर। किताबों ने मेंटल थिंकिंग को बहुत चेंज किया। तो मुझे लगता है यार सबसे शेयर होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं डू यू रीड, तो आर्यन डू यू रीड इट? Not much. Not much. Okay. Do you want to read, Aryan? Yes, Okay. definitely. So, definitely. Now, Aryan, I take it, is from a decent financial background. I'm assuming that he can afford a book. Aryan knows the language. He knows English. Then what is why? And probably he also knows कि books से अच्छा होता है. But कहीं ना कहीं एक lethargy आती है, कहीं ना कहीं एक टास्क है. Honest बात तो यही है. तो उस आदमी के बारे में सोचिए जिसको इंग्लिश नहीं आती, जो एक बुक अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसको पता तक नहीं है कि यार बुक पढ़ने के फायदे क्या होते हैं। तो न केवल आर्यन बल्कि वो व्यक्ति भी जो बुक नहीं पढ़ता, मैं चाहता हूं कि उनका थोड़ा सा डेवलपमेंट हो। अगेन बिजनेस है उसके पीछे मेरा, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जहां गैप है। बुक रिव्यूज आपको बहुत मिलेंगे, आप देखिएगा, लेकिन आप देखेंगे ढंग की बात कोई नहीं कर रहा। रिच डैड पुअर डैड का मैंने बुक रिव्यू बनाया, उसमें जो एक्चुअली 5-6 पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग थे वो किसी ने बोले ही नहीं है, जबकि मैंने 4-5 और इवन अंकुर वारिको का मैंने वीडियो देखा, उन्होंने एक दूसरा पॉइंट अच्छा बोल दिया था, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। यानी आप क्या कर रहे हो, आप कहीं से रिव्यू पढ़ लेते हो, उस रिव्यू को वापस दे देते हो। तो मुझे मजा नहीं आ रहा ना, लेकिन फिर मैंने कहा या तो मार्केट में स्पेस है, या तो अगर मैं जैसे अभी द साइकोलॉजी ऑफ मनी के वीडियोस बना रहा हूँ, राइट, तो मैं कह रहा हूँ मैं एक रिव्यू नहीं बनाऊंगा, मैं हर हर चैप्टर का एक रिव्यू बनाऊंगा। तो जो देखेगा कहीं ना कहीं वो कुछ सीखेगा, प्लस मेरे लिए लाइब्रेरी है वो। मैंने 500 किताबें अगर जीवन में पढ़ी तो मुझे सब तो याद नहीं है, सारे पॉइंट्स तो सर याद नहीं है शर्मा सर। तो मेरे लिए वो क्या बन गई, लाइब्रेरी बन गई। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम किसी को इंस्पायर करने के लिए नहीं चालू किया था। मैं आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, आई वॉन्टेड पॉजिटिविटी इन माई लाइफ, तो मैंने कहा मैं मेरी एक लाइब्रेरी बना लेता हूँ कि जब मैं डाउन होऊंगा मैं उसको देख लूंगा। somehow पीपल कनेक्टेड, मतलब फॉर्चुनेटली। तो ये बुक्स भी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पहली बात तो मार्केट में स्पेस है, दूसरा मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी कॉम्पिटिटिव रहे ना। मेरा फ्रेंड है, ही इज फ्रॉम IIM अहमदाबाद, एंड ही टोल्ड मी समथिंग अबाउट, जब हम सवाल किसी से पूछते हैं हर व्यक्ति जवाब देना चाहते हैं, साइकोलॉजिकल है। एंड आई वाज लाइक ओके, नाउ दिस इज अ गाय फ्रॉम IIM हु नोज दिस थिंग, आई एम अ गाय फ्रॉम IMS हु डजंट नोज दिस थिंग, सो ही इज प्लेइंग मी समवेयर और द अदर, क्योंकि वो मेरे से बिहेवियरल साइंसेज में ऊपर है, तो वो मेरे जैसे लोगों को माल बेचने पे यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा व्हाई डोंट वी इम्प्रूव आवर लेवल्स, ये एक शायद रीजन था। तो मोर और लेस, और धंधा है, कहीं ना कहीं गैप है। जिसको पसंद आएगा वो 18 वीडियो देखेगा, जिसको नहीं आएगा अगेन आई डोंट माइंड। अब आर्यन को बुक पढ़ने का टाइम नहीं है या उसको बोर लगता है, बट प्रोबेबली ही कैन वॉच द वीडियो, एंड इफ ही लाइक्स वन वीडियो देयर इज अ गुड चांस वो पूरी सीरीज देख लेगा। तो ये उसके पीछे लॉजिक है। सर जैसे बुक रीडिंग की बात करी, न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, पर आजकल तो सब कुछ डिजिटल है। तो क्या स्किल्स होने चाहिए एक इंडिविजुअल में अभी एट दिस टाइम, और क्या इम्पोर्टेंस है बुक रीडिंग और न्यूज़पेपर रीडिंग की? ये आप एक कंटेंट क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं या एक नॉर्मल व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से? जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो क्या कंटेंट बेनिफिट्स हो? क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए नया सॉफ्टवेयर कौन से आ रहा है। मैंने जब यूट्यूब पे वीडियोस बनाने चालू किया मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, देन आई केम टू फिल्मोरा। मुझे पता फिल्मोरा से मैं एडिट कर सकता हूँ, फिर फिल्मोरा सीखा। फिर मुझे पता चला कैनवा में मैं बहुत अच्छे उसके थंबनेल बना सकता हूँ। फिर एक दिन मैंने कहा कि यार मेरा जो कैमरा क्वालिटी है लैपटॉप का वो उतना अच्छा नहीं है, मोबाइल का अच्छा है, लेकिन मुझे यूज करना है OBS। अब OBS एक नया सॉफ्टवेयर सीखा। अब मैंने कहा OBS है लैपटॉप का और यूज करना है मुझे कैमरा मोबाइल का, अब क्या करूं? तो मुझे पता चला एक सॉफ्टवेयर है जो इन दोनों को कनेक्ट कर सकता है। तो वो जो एक लर्निंग थी कि यार मुझे अगर
OBS भी मेरे लिए एक टास्क था। उस टाइम कोरोना चल रहा था, एवरीबडी वाज यूजिंग OBS एंड आई वाज थिंकिंग यार OBS कैसे करेंगे यार, पता नहीं क्या होता होगा। समबडी सेड करो यार, होगा। एंड आई रियलाइज इट इज वेरी इजी। OBS इज लाइक प्रोबेबली वन ऑफ द इजीएस्ट सॉफ्टवेयर्स टू यूज। उसके तो अभी एक सर व्यूअर है हमारे इंस्टाग्राम के, उनका कॉल आया मुझे। उन्होंने कहा कि उनकी मदर है, सीनियर सिटीजन है, उन्होंने ड्यूरिंग कोरोना यूट्यूब चालू किया, निटिंग का चैनल चालू किया। बहुत अच्छी बात है। अब उनके विदेशों में व्यूअर्स आ गए, अब वो इंग्लिश में सवाल पूछ रहे हैं। अब मैम को भाई नहीं आता था उनको, तो शी स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एंड शी रिप्लाइड इन इंग्लिश। देन शी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट विच आर द सॉफ्टवेयर्स दे आर देयर। जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट नहीं करेगा एज अ क्रिएटर, वो कहीं ना कहीं उस आदमी से पीछे रह जाएगा, हु नोज इट। तो मैं एज अ क्रिएटर, यू शुड नो, मैंने आपसे कहा था जो नया फीचर आ रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, पता करो, वहां माल डालो, हो सकता है वो हो जाए, स्प्रेड हो जाए। दूसरा, अब एज अ व्यूअर बहुत इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है, बहुत इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है, तो कट योर सोर्सेस, कट योर सोर्सेस, मतलब बी ब्रूटल, बी ब्रूटल। आप देखो ये वीडियो देख के मुझे मजा आया क्या, या तो एंटरटेनमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, बट द क्वालिटी ऑफ एंटरटेनमेंट। आजकल क्या हो गया कि पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर गाली गलौज है, वल्गैरिटी है, न्यूडिटी है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको गुड कंटेंट से। सर टेम्पररी चीज है, कब तक चलेगी? एक टाइम बाद आदमी बोर हो जाएगा। लिपसिंक इंस्टाग्राम पे चला, कब तक चलेगा? लोग कहेंगे आप जो लिपसिंग कर रहे हो वो दूसरा भी कर रहा है। डांसेस चलते हैं, आदमी एंजॉय करता है, 2 मिनट देखता है, लेकिन सब लोग डांस कर रहे हैं। आपको आपका नीश पकड़ना पड़ेगा कि मैं क्या एंजॉय करता हूँ। जैसे मुझे वही जो बात हुई कि बिजनेस की कहानियां सुनाने में मजा आता है, इंस्पिरेशनल स्टोरीज में मजा आता है, तो कोई नहीं भी देखेगा शर्मा सर, तो भाई मैंने तो बना दिया, मैंने तो बनाने में एंजॉय कर लिया। हाँ, एज अ व्यूअर पॉजिटिव चीजें देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, बहुत अच्छी इंस्टाग्राम की उनकी प्रोफाइल है, अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो करिए, क्योंकि उसको जब भी आप देखोगे वो पता नहीं दुनिया में एक सुपर फूड आया उसके बारे में बता रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो जैसे जैसे आप सिलेक्टिव होते जाओगे, जैसे मैं बीच में बहुत सारे जोक्स के इंस्टाग्राम को फॉलो करता था, बट आई रियलाइज ड्यू टू लैक ऑफ कंटेंट देवर नाउ दे स्टार्टेड गिविंग गार्बेज। वो नेगेटिव भी होता था, तो मन होता था खराब, तो वो आपको वो रिसोर्सेज साफ करते जाना, ये आई थिंक दैट इज। और बाकी तो आप समझदार लोग हैं यू लर्न विद एक्सपीरियंस की व्हाट यू नीड टू डू। क्योंकि देखिए कई लोग क्या करते हैं ना, टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट नहीं होते। मेरे साथ के जो शर्मा सर दोस्त हैं मेरे, जो MBA में थे, मैं उनसे बात करता हूँ, दे फील एलियन। बोले तुम क्या बात कर रहे हो, ये क्या होता है, वो क्या होता है, क्योंकि मैं अडेप्ट करता जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा ऑडियंस तो यंग यंग लोग हैं। मैं फिल्में बना रहा हूँ, मेरा जो पार्टनर है ही इज 25 years old, आई एम फ्रेंड्स विद 20 years old पीपल। तो मैं तो अपने आप को अडेप्ट कर रहा हूँ, बट समवेयर दे आर स्टक, क्योंकि उनका नौकरी धंधा चल रहा है, उनको लिमिटेड सॉफ्टवेयर जानने हैं, तो दे आर नॉट अडेप्टिंग। तो वो एटीट्यूड आज से डालना पड़ेगा। हाँ प्लीज। Yes, sir. So, like, what advice would you like to give all the students that those who are present here and want to be the aspiring authors, directors, YouTubers, and Instagram influencers who are looking to excel in the art of storytelling and audience engagement? मुझे लगता है रीडिंग एक ऐसा आर्ट है जो सब जानते हैं करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है। मैंने सर कहीं सुना था कि जो 1200 सबसे अमीर लोग हैं दुनिया के, दे रीड, दैट इज द ओनली कॉमन हैबिट बिटवीन देम। यस, 6 तारीख को रीड अ बुक डे था, अभी जो 2-3 दिन पहले, उसमें मैं बना रहा था वीडियो, तो मुझे पता चला 88% ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड रीड डेली हाफ एन आवर डेली दे रीड। बिल गेट्स रीड्स 50 बुक्स अ ईयर जी, और 5 बुक्स वो सर हर साल रिकमेंड भी करते हैं। हम जैसे तो क्या, बुक 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 एल्कोहलिक लोगों को तो बहुत मजा आता है इन सब चीजों में, हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग डोपामाइन रश होता है हम जब किताबों की बात करते हैं किसी से। तो रीडिंग आपको अलग ट्रेजेक्ट्री में ले जाएगा। आज आप सर शर्मा सर, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये कहाँ से कहानियां लाते हो, तो सर कुछ तो पर्सनल कहानियां हैं, लेकिन बहुत सारी कहानियां जो पढ़ी हैं कहीं पे। तो रीडिंग एक ऐसी चीज है जो आपको 90% लोगों से ऊपर ले जाती है। आप
आर्यन, ईशा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए शर्मा सर की क्लास है, शर्मा सर ने आपको कुछ पढ़ाया, प्रॉब्लम ये है कि आपके पड़ोसी को भी वही पढ़ाया है, पीछे वाले बेंचर को भी वही पढ़ाया है, तो आप तो वही है ना भाई। उन्होंने भाई, एक स्मार्ट आदमी को 20 समझेगा, आप थोड़े कम हो गए, आप 19 समझोगे, कोई 18 समझेगा, तो 19, 20, 18 की बात है। लेकिन किसी व्यक्ति ने बाहर जाके भी पढ़ लिया कुछ, वो 22 हो गया, मुझे एक्स्ट्रा एज है, वो आपको बहुत आगे ले जाती है। सर मैं एक छोटा सा एक टेड का वीडियो है, अगर मैं सजेस्ट कर पाऊँ, TED.com आप सब जानते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाउ टू अचीव योर मोस्ट एम्बिशियस गोल्स, हाउ टू अचीव योर मोस्ट एम्बिशियस गोल्स, बहुत अच्छा वीडियो, 17 मिनट का वीडियो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप देखिए कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस आपको बहुत आगे ले जाते हैं। अच्छा, जो अगर आप बात करें जो मुझे एस्पिरेशनल लगते हैं काफी, तो मैंने जैसा आपसे कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मुझे बहुत पसंद है। एक थिंक स्कूल करके एक चैनल है यूट्यूब पे, प्लीज देखिए, अगर आप सब्सक्राइब, आप मैनेजमेंट स्टूडेंट है, मतलब यू शुड हर वीडियो देखना आप उसका, थोड़ा उसके पॉलिटिकल भी आते हैं बट ही इज अ वेरी न्यूट्रल गाय, सबसे अच्छी बात यह, उनके जो इकोनॉमी पर वीडियो आते हैं, या उनके आई थिंक अभी मैगी के ऊपर केस स्टडी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी केस स्टडीज करते हैं। अभी मिल्क कार्ट के ऊपर जैसे मिल्क बास्केट के ऊपर बहुत अच्छी केस स्टडी थी, ये मुझे बहुत पसंद है। TED.com, टेड इज लाइक ब्यूटीफुल, टेड पे तो इतने वैरायटी और गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, हर वीडियो नहीं होगा उतना अच्छा, बट यू गेट अ लॉट ऑफ। एक क्रैश कोर्स है, ये जॉन ग्रीन का एक क्रैश कोर्स। हमें MBA में सर एक चीज बोलते थे कि हर महीने एक ऐसी मैगजीन पढ़ो जो तुम्हारे सब्जेक्ट की ना हो, गार्डनिंग पे पढ़ लो, आपका सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो आपके नॉलेज को बहुत अलग लेके जाएगी। अलराइज जैकट्राउट का आपने नाम सुना होगा, मैनेजमेंट पे, सॉरी मार्केटिंग पे उनकी बहुत अच्छी किताब है, मार्केटिंग वॉरफेयर बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कन्वर्जेंस का, उन्होंने कहा था दुनिया में कोई भी नई चीज नहीं है, एक मोटर थी और एक ठेला था, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों को मिला के कार बना, कुछ भी नया नहीं है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। बस क्रिएटिविटी है कि जो एग्जिस्टिंग कौन कौन सी चीजों को मिला के आप नया क्या बना सकते हैं। अब आप मैनेजमेंट स्टूडेंट है, आपने भी कॉटलर पढ़ा है, उसने भी कॉटलर पढ़ा है, लेकिन आपने गार्डनिंग भी पढ़ी है, अब गार्डनिंग को और मैनेजमेंट को मिला के कुछ नया बना दो तो वो जीत है आपकी। तो डाइवर्सिटी शुड बी देयर, रीड करिए, पढ़िए। अब क्या होता है, हम बहुत ज्यादा टाइम केवल एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, वी नीड टू नो मोर एंड मोर अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, ट्राई टू फाइंड आउट अ लिटिल अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मतलब मेरा क्योंकि वो अप्रोच रहता है। So by this, we end our question answers round, and I would like to thank you, sir. Thank you so much for sharing your thoughts. This will definitely help us in our future. And I think many of us will start reading books and newspapers after this session. Right. Thank you so much, sir, for being here. And we would like to see you physically in our campus taking our session. Thank you so much. दैट विल बी अ प्लेजर, और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने बोर नहीं किया आप लोगों को। बिल्कुल नहीं सर। नहीं, वो तो मजबूरी भी हो सकती है आपका ये बोलना, शर्मा सर मारेंगे नहीं तो आपको बोला ऐसा बोलना। नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, मतलब टीचिंग इज माय पैशन, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया, और मतलब इंटरेक्टिव सेशन था, मुझे अच्छा लगा। और किसी को और कुछ बात करनी हो तो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, आप पकड़ सकते हैं मुझे वहाँ पे। और बाकी तो थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। Yes, thank you very much, Prabhaji, and thank you very much, Aryan and Isha, for hosting this. So I know and I hope that it's a very insightful and a session with full of learning for the students, and they are going to use it whenever they are writing a blog or even an email, right? So how to connect with the audience, how to know the audience and everything. So thank you very much, and we are going to put this on our YouTube channel also. Oh, We'll share that the will be link great. with you also. Okay? Please send me Thank the you. link. I'll Yes. क्योंकि a few of my friends may want to see it. Yes, yes. Thank you very much. Okay, sir. Thanks a lot. Okay. So, all right.